Okay, so Anshul, let me thank you first for giving your time to me for this interaction. And I also want to congratulate you, Anshul. You are presently you are a student of NITI Bombay, and you are in your second year. And you shared with me a good news that you got very high package placement and very high package, which is really wonderful. Though we cannot disclose that particular thing here, but I'm very sure, Anshul, आपके साथ जो interaction होगा मेरा आज, वो बहुत से स्टूडेंट्स के लिए एक आई ओपनर होगा, एंड इट इज गोइंग टू हेल्प लॉट ऑफ स्टूडेंट्स बिकॉज एट दिस मोमेंट स्टूडेंट्स आर इन देयर डिसीजन मेकिंग मोड के करियर को किस डायरेक्शन में लेके जाएं, and you have multiple exposure, earlier you doing your masters in IIT Delhi, and then now you did masters from NITI Bombay, got a very good package there. You must have done wonderfully good in NITI Bombay, and I'm sure this entire thing is going to be helpful for students. So welcome you on Your PD Education. Thank you, sir. Pleasure is all mine. Okay, so Anshul, before I go proceed forward, I want you to tell us about you, which part of India you are from, आपने graduation किस stream में किया है, which branch of engineering, and from which college, and then you must have written your GATE exam. Then how was your journey from college till NITI? That briefly you please tell us. Okay, sir. Hello everyone. My name is Anshul Verma. I have done BTech in Mechanical Engineering from IIT Lucknow, and after doing in the 2018 when I passed out, I was very intent for the GATE exam, as we know that we write it for the different job opportunities and colleges like NITI. After doing the preparation in the 2019 GATE score, I have it was not so much that I could clear the PI interview round for NITI Mumbai. I think I got 4 or 5 GATE score less, but it was enough to get MTech in IIT Delhi. So I don't want to lose that opportunity, and I have get admission in IIT Delhi. And in IIT Delhi, I have taken admission in ITMEC department, and during ITMEC, during my journey and during MTech while doing at IIT Delhi, I have met a professor, I think Desmukh sir, and when I have taken the particular subject known as supply chain management, and it really kicked me at that point of time that it is the thing that I want to do in the future. And when we talk about in India, we know that for supply chain, the best college in NITI Mumbai. Though I could have, someone can say that I could have completed my MTech at IIT Delhi and then go to NITI, but I think it has wasted my extra year, which I would have saved when I have joined NITI Mumbai. So by doing MTech in IIT Delhi, I parallelly maintained my preparation for the GATE exam of 2020, and in GATE 2020 I have got 806 GATE score, and through that I have taken admission at NITI Mumbai. Okay, great. So अंशुल, एक तो बातें पूछूंगा यहाँ पे आपसे. पहला कि आप ITMEC डिपार्टमेंट में थे IIT दिल्ली में, इंडस्ट्रियल ट्राइबोलॉजी, if I'm not wrong. So how could you do a course with Professor Deshmukh, because he is in industrial engineering department? So I think it is interdisciplinary course. Yes, sir. Sir, there is an opportunity available to every student at IIT Delhi to do an open elective kind of subject from from any other department, and I have chosen Professor Supply Chain Management under. So you started liking it, and then you decided कि चलते हैं NITI Bombay ही चलते हैं, right? Yes, sir. Yes, sir. I think his method of teaching and the way I learned the subject, I started liking that subject. So that's why my intent towards that. अच्छा अंशुल, बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो एमटेक कर रहे हैं अभी, बिकॉज लास्ट ईयर उनका जो गेट स्कोर था वो ठीक था, लेकिन मे बी जैसे आपका केस था कि आपने 806 स्कोर पे NITI मिल गया. उससे पहले जब IIT दिल्ली मिला था तो कितना स्कोर था आपका? सर मेरा एग्जैक्ट स्कोर जब मुझे IIT दिल्ली मिला था तो इट वाज अराउंड 728. 728. सो आप थोड़े से स्कोर से मिस कर गए, और ऐसा बहुत से बच्चे हैं, जैसे अभी गेट एग्जाम फिर से हो रहा है, बच्चे एमटेक कर रहे होंगे, और ये हर साल ही बहुत सा बच्चा है जो पूछता है कि सर हम जब जाएंगे आगे, अभी मैं दोबारा NITI के लिए अप्लाई कर रहा हूं, तो पहला क्वेश्चन करना चाहिए कि नहीं, और दूसरा क्वेश्चन कि जब मैं इंटरव्यू में जाऊंगा और मेरे से वो पूछेंगे कि आपने तो भाई एमटेक में ऑलरेडी कर रहे हो, तो फिर मैं क्या जवाब दूंगा? ये दोनों क्वेश्चन मैं आपकी तरफ अभी उछाल रहा हूँ, बताइए. सर मुझे लगता है कि जब इंटरेस्ट पे भी होता है, टू बी ऑनेस्ट, अगर किसी का रिसर्च में इंटरेस्ट है, उसका एमटेक वो मैकेनिकल में कर रहा है, तो अगर रिसर्च में ही इंटरेस्ट है तो आई वुड नॉट कमेंट ऑन दैट. दे शुड गो अच्छा PhD
हैं and they could go on the research. सही है, अगर मैं बात उनकी कर रहा हूँ, they want a good job, they want, हाँ, job and also a very good package. So I think they can switch for the NITI because सर मेरे ख्याल से एक साल आप वेस्ट करोगे एक्स्ट्रा, हो सकता है कि आपको एमटेक में जितना पैकेज मिले आपको उसका ट्वाइस एंड थ्राइस NITI में आके मिल जाए, राइट? आपको ये सभी माइंडसेट करना पड़ेगा। मेरे ख्याल से जो फैसला आपको अभी लेना है, आपको आगे 5 साल सोच के लेना है। लोग क्या करते हैं सर, आज का सोचते हैं और फिर डिसीजन लेते हैं, आई थिंक वही उनका फिर बैकलॉग बन जाता है। तो आप टीम है। और सर रही बात इसके इंटरव्यू की, तो आप फ्रैंकली बोल सकते हैं कि क्योंकि सर मेरे ख्याल से लाइफ में डिसीजन कभी कभी हम लोग एक्सपीरियंस नहीं है, हम लोग स्टूडेंट हैं, हम लाइफ नहीं देखी है, तो कभी कभी जब लाइफ में ऐसी चीजें सीखते हैं, सप्लाई चेन ये सब सीखते हैं, तब हम पता चलता है कि लाइफ में हमें करना क्या है। शुरुआत से किसी को पता होता सर कि इसी फील्ड में जाना, तो वो जल्दी हो गया रियलाइज, और जिस रियलाइज हुआ, जैसे रियलाइज हुआ, आई हैव टेकन पार्ट इन इट बिकॉज़ इट इज बेस्ट। So Anshul, I come to now next part. आप जैसे जैसे NITI का हम बात करते हैं, तो NITI में पैकेज आपने IE में किया है, वहां पे PGDM IE में किया है, तो उसमें अगर मैं पैकेज की बात करूं तो नो डाउट वी कैन नॉट हियर, आई शुड नॉट आस्क यू डायरेक्टली कि आपको कितना मिला, दो इट इज वेरी हाई पैकेज यू गॉट, बट अगर मैं बात करूं कि मिनिमम कितना मिलता है, एवरेज कितना मिलता है और हाईएस्ट कितना मिल सकता है, कितना तक जा सकता है, तो कुछ वो रेंज अगर आप शेयर कर सकें, बिकॉज आई थिंक दैट इज देयर ऑन द NITI साइट आल्सो, दे हैव आल्सो डिस्क्लोज दैट, तो थोड़ा अगर बता सकें आप कि साहब अगर कोई नॉर्मल एफर्ट कर रहा है बच्चा, तो कितने तक का पैकेज उसको मिल सकता है? Sir, as it is disclosed in NITI, the highest package is 49. That has gone in NITI, and the lowest is around. आप अपने ग्रुप की बात कर रहे हैं, अपने ईयर की बात कर रहे हैं? हाँ, अपने ईयर की बात कर रहा हूँ, जो हमारा प्लेसमेंट हुआ है सर, एंड एवरेज जो होता है वो अराउंड 20 रहता है, वो हर साल रहता है, ये नहीं कि हम ही लोग में, एवरेज अराउंड 20 हमेशा रहता है। तो अंशुल अब ये बताओ क्या डिफरेंस करता है एक बच्चे को जिसको 20 मिलता है और जिसको 50 मिलता है? तो बहुत डिफरेंस है, तो क्या डिफरेंस होता है, आप क्या बोलेंगे? आई थिंक सर कई चीजें रहती हैं, आपका कैसा प्रिपेयर करते हो आप वो, और क्योंकि मेरे ख्याल से आपका जॉब एक्सपीरियंस तो नहीं था। नहीं तो बिना जॉब एक्सपीरियंस के अगर बहुत ज्यादा किसी को मिलता है तो किस बेस पे मिल जाता है वो? आई थिंक सर ये स्टूडेंट टू स्टूडेंट पे डिपेंड करता है, ऐसा नहीं किसी को हाई मिल रहा है तो ज्यादा काबिल और जो को कम मिल रहा है कम काबिल है। पर्टिकुलर डे भी रहता है सर इंटरव्यू का, वो पर्टिकुलर डे आप कैसा परफॉर्म कर रहे हो वो भी रहता है, और कभी कभी ये रहता है कि सर आपकी जो प्रोफाइल है जो आप पूरा बनाते हो, कंपनी उससे कितना रिलेट कर पा रही है, तो आई थिंक ये सब फैक्टर्स रहते हैं सर। देखो कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो NITI के लिए एस्पायर करते हैं और ये बोलते हैं कि सर मेरा 10th में मार्क्स बहुत अच्छा नहीं था, मेरा ग्रेजुएशन के बाद 2 साल का गैप था, तो सर प्लेसमेंट में इसका कितना इम्पैक्ट पड़ेगा बाद में? क्या आंसर है आपका इसमें? सर मेरा ग्रेजुएशन के बाद 2 साल का गैप था, बिकॉज मैंने एमटेक आपका भी, अच्छा आपका भी गैप था, राइट? हाँ, तो उसके बाद भी मेरी प्लेसमेंट हुई सही, तो और हुई और बहुत अच्छी हुई, मतलब तो मतलब कि अगर मेहनत करे बच्चा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसमें, राइट? सर अगर हमारा ये आप सिंपल सोचिए ना, आपको एक एम्प्टी बॉक्स है, आपको उसको फिल करना है, राइट? आपका एक बॉक्स छोटा है, जो आपके कई मल्टीपल पीसेस हैं, आपका एक पीस छोटा है, आपका मान लीजिए 10 छोटा है, आपका गैप है वो छोटा है, बट आपके पास अपने 2 साल है NITI में जिसमें आप कई चीजें कर सकते हो, तो उस बॉक्स को अपना बड़ा करो बाकियों से, ताकि फिल जो टोटल आउटपुट आपकी पिक्चर सामने आए कंपनी के, वो आपका सबसे ज्यादा दिखना चाहिए। तो आई थिंक माइंडसेट ये गलत है कि हम ये सोचें कि ये कम है हम क्या करें, हम ये सोचते हैं कि ये कम है तो बाकियों को मैं इतना अच्छा करूंगा कि ओवरऑल मैं बाकियों से भी ज्यादा अच्छा कर गया। ओके अंशुल, माय नेक्स्ट क्वेश्चन, दो ये मैं बोलता हूँ स्टूडेंट्स को कि NITI इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस थ्रू गेट, इवन बेटर देन PSU, वो मेरी पर्सनल ओपिनियन हो सकती है। I ask you the same thing, why how you justify that NITI is the best? Now you are alumni of NITI also. Sir, I think NITI is best in the particular domain. If you talk about the supply chain, sir, among all colleges, NITI is the best college in India. As the Makkah of supply chain, right? And when we supply chain is a thing, sir, that COVID period has also increased in the demand. You must have in the supply chain, the transportation of the vaccine when we talk about, right? This is the bigger problem. And when there was lockdown also, and there was a supply chain constraint many company has faced. So it is the growing thing that is, and it is applies in everything, right? When we talk about a pharmaceutical company, there is supply chain. When we talk about the FMCG company, there is supply chain. So it's a very wider field to go. And sir, all the options that we have through GATE, I think the highest package you can go get, I think that is NITI. अच्छा, आपने NITI ज्वाइन कब किया था अंशुल? सर 2020 में। आपने तब ज्वाइन किया जब कोविड स्टार्ट हुआ?
और आप अब जॉब लेके बैठे हैं, अभी कोविड की थर्ड वेव आ रही है, और डिस्पाइट ऑफ दिस कोविड, जैसा लोगों को लग रहा था कि साहब निटी ज्वाइन, मेरे को याद है बहुत क्लियरली, जब आपका बैच था तो स्टूडेंट जिनको निटी से कॉल आता था उनके दिमाग में एक ही क्वेश्चन होता था कि सर फीस बहुत ज्यादा है, हम जाएं कि ना जाएं, क्योंकि पैसा वेस्ट ना हो जाए। आपको मैं क्लियरली बता रहा हूँ ये चीज होती थी, क्योंकि ये बात है मार्च 2020 जब लॉकडाउन लग गया, एंड निटी वाज द फर्स्ट कॉलेज जो उस टाइम पे एडमिशन ले रहा था। एंड आई रिमेंबर कि उन्होंने अपना जो मेथड रखा था कि रिकॉर्ड करके डाल दो अपना इंट्रोडक्शन, और इंटरव्यू भी नहीं हो पाए थे। सो उस टाइम पे स्टूडेंट्स का ये था कि सर हम निटी ज्वाइन करें कि ना करें, क्योंकि फीस बहुत ज्यादा है और कोविड में इंपैक्ट पड़ेगा। बट वी सी द रिवर्स, वी सी इनफैक्ट यू गॉट अ वेरी गुड पैकेज नाउ ड्यूरिंग योर स्टडीज, इवन ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर फेज ऑफ कोविड। व्हाट डू यू वांट टू से ऑन दैट? सर आई थिंक हमें थोड़ा जब डिसीजन लेते तो थोड़ा लॉन्गर पीरियड के सोचना चाहिए, रिसेंट के लिए नहीं। कोविड आया भी था, कई लोगों को डाउट था, बट सबको ये बात भी तो पता थी कि कोविड ऐसा नहीं है कि 10-20 साल तक रहने वाला है, राइट? आई थिंक दैट इज गोइंग टू लास्ट फॉर 3-4 इयर्स या 2-3 इयर्स। तो हो सकता है, ऑब्वियसली सर एक रिस्क था, ऑब्वियसली मैंने भी सोचा था कि हो सकता है शुरुआत में मेरी जॉब ना लगे, कि मैंने ये भी सोचा था कि अगर शुरुआत में बहुत अच्छी जॉब नहीं भी लगती है तो आगे आई हैव अ निटी लाइक अ ब्रांड बिहाइंड मी टू वॉक थ्रू, तो आगे चल के मैं 1-2 साल में जब ये इसका इफेक्ट खत्म होता तो मैं आगे चल के एक अच्छा प्रोग्रेस करूंगा। तो आई थिंक नेगेटिविटी थी, बट उसके साथ एक पॉजिटिव अप्रोच भी थी टू डील विद। अच्छा अंशुल, अब आप देखो एक रोल मॉडल हो आप, आपने बहुत अच्छी सैलरी पैकेज आपको ऑफर हुआ है, और निटी ने बहुत अच्छा करियर ऑफर किया है आपको, और जो आपने फीस दी है उसका बहुत अच्छा रिटर्न ऑन योर इन्वेस्टमेंट मिला है। मैंने पिछले वीक एक और स्टूडेंट से इंटरेक्ट किया था निटी के, और ही टोल्ड मी कि सर मेरा कोई सिंगल पेन ही नहीं लगा, बैंक में फोन किया, बैंक ने सब कुछ दे दिया, एंड एवरीथिंग वाज वेरी स्मूथ। एनीहाउ नाउ आई एम कमिंग टू सेकंड पार्ट, लाइक हमारे कंट्री में ना क्रेज है पब्लिक सेक्टर जॉब्स का, नो डाउट पब्लिक सेक्टर जॉब्स आर वेरी गुड जॉब्स, आई एम नॉट डिनाइंग दैट, बट पब्लिक सेक्टर जितने लोगों को जॉब दे सकता है वो लिमिटेड है। और अदर देन दैट वी हैव वेरी गुड कोर्सेज, NIT is one of them, then we have management courses in IIT Bombay, IIT Madras, and very good technical courses in IIT Bangalore, IIT Bombay, and so many other domains also, और बहुत अच्छी सैलरी भी लगती है उनसे। लेकिन स्टूडेंट्स में एक बहुत बड़ा इनर्शिया है कि साहब ये जो गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर की जॉब है तो जॉब है, प्राइवेट सेक्टर में तो हालत खराब हो जाती है, और सैलरी तो देते हैं लेकिन वर्क लाइफ बैलेंस के नाम पे कुछ नहीं है। व्हाट इज योर आंसर टू दैट? सर आई थिंक सर एक तो प्रायोरिटीज हो जाती है, अगर आपका इंटरेस्ट है, जैसे अगर आप ओएनजीसी आईओएसएल में आपका इंटरेस्ट है कि आपको इसलिए ज्वाइन करना है बिकॉज आपको उस जो पर्टिकुलर वो काम करते हैं उसमें इंटरेस्ट है, तो सब जस्टिफाइड है, आपका इंटरेस्ट वैसा। लेकिन अगर आप सिर्फ इसलिए ज्वाइन करना चाहते हैं सरकारी बिकॉज यू थिंक दैट इज इट मोर स्टेबल और यहाँ पे काम करना पड़ेगा, तो सर मैं नहीं मानता ऐसा। मेरे दोस्त हैं आईओसीएल या ओएनजीसी में, वो सर बहुत काम करते हैं, उनको बहुत काम करना भी पड़ता है, राइट? एंड वी टॉक अबाउट अगर प्राइवेट सेक्टर में हम ये बात करते हैं सर, अगर आप डिपेंड करता है ना आप प्राइवेट सेक्टर में जॉब कौन सी कर रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर इज अ वेरी बिग टर्म दैट इज हैज अ वेरी बिग डोमेन, बट टॉप लेयर की बात कर रहे हैं, देयर आर आल्सो डिफरेंट लेयर्स इन द प्राइवेट सेक्टर। लेवल की बात करें, अगर आप जैसे ब्रांड को लेकर जा रहे हैं तो आपके पास वो चांस है, जो ग्रोथ का चांस है ना सर, टू कन्वर्ट फ्रॉम अ मिडिल क्लास, अ पर्सन कमिंग फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली टू गो टू इन अपर क्लास, वो आपको पीएसयूज में नहीं मिल पाएगा, वो आपको ऐसे जगह निटी या आईएम्स में जाके मिल सकता है टू गेट इनटू पोजीशन, जब आप उस लेवल को एक पार कर सकते, वो ब्रिज जो है उसको आप कवर अप कर सकते हो। अच्छा अशोक, मेरे को ये बताइए, आप जैसे निटी से जब निकलने के कितने साल के बाद सीईओ बन जाते हैं ऑन एन एवरेज? सर इट्स मतलब ये बहुत ही सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, मतलब एग्जैक्ट मैं नहीं करता है, बट अराउंड आई थिंक 10 to 15 इयर्स। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आप बहुत रोल मॉडल से मिले होंगे, क्योंकि निटी इज इंस्टीट्यूट जो आपको चांस देता है एलुमनी का एक्सपोज होने का और मिलने का, तो आपको उनसे मिले भी होंगे आप। सो ग्रोथ ट्रेजेक्टरी कैसी रहती है निटी के बाद? सर आई थिंक ग्रोथ ट्रेजेक्टरी बहुत अच्छी रहती है सर, अगर आप कंपनी स्विच भी करते हैं तब भी आपकी ग्रोथ अच्छी रहती है, अगर आप सेम कंपनी पे रहते हैं जो प्रमोशंस भी होते हैं वो भी फ्रीक्वेंट हो जाते हैं सर, 2-3 इयर्स में आपकी प्रमोशन रह जाते हैं एंड पैकेज भी उसी प्रोपोर्शन में इंक्रीज करता है, तो ग्रोथ ट्रेजेक्टरी बहुत ही अच्छी है। कई बार तो कई लोगों को सर अपॉर्चुनिटी मिली है, हमारे एल्यूमनाई हैं वो आउट ऑफ इंडिया भी कई जगह स्टेबल हैं इन डिफरेंट कंट्रीज। अच्छा अंशुल, अब आपका जो अभी इनिशियल तुम्हें सैलरी मिलेगा या इनिशियल पैकेज है वो किसी भी बड़े पीएसयू, जैसे मैं ओएनजीसी वगैरह का नाम लूं, उससे 3 टाइम से भी ज्यादा है, सो आगे जो ग्रोथ होगा क्या वो भी प्रोपोर्शनली ज्यादा होता रहता है या हाउ इट गोस? ऑब्वियसली एज कंपेयर टू पीएसयूज, प्राइवेट सेक्टर में ग्रोथ आपका ज्यादा तेजी से होता है, उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा तेज होती है, एंड इनफैक्ट एक स्टैंडर्ड रूल भी अगर आप स्विच भी करोगे कंपनीज तो उसमें भी आपका ग्रोथ ज्यादा रहेगा, राइट? अराउंड से जो इंक्रीमेंट रहता है वो 20 to 30% ऑफ टॉप ऑफ योर प्रेजेंट पैकेज रहता है। अच्छा, मैं कुछ वीक पहले, कुछ मंथ पहले मैं
एक और वीडियो डाल रहा था, अभी आपसे मैं बात कर रहा था, चंदन के साथ इसरो में सिलेक्शन हुआ है, चंदन का इज वंडरफुल गाय, एंड ही मेंशन्ड योर नेम आल्सो इन द इंटरेक्शन, एंड टुडे यू आल्सो मेंशन्ड कि चंदन आपके फ्रेंड हैं. टेल मी समथिंग अबाउट योर फ्रेंड्स. क्या आपने तैयारी किया था, कुछ फ्रेंड्स होंगे आपके साथ साथ, एंड हाउ इट ऑल वेंट? क्या ओके सर, मैं स्टार्ट करता हूँ अपने आईआईटी से. जब मैंने बीटेक तो साथ में तैयारी कर रहा था. एंड आईआईटी इज अ वेरी गुड कॉलेज, राइट? यस सर, आईआईटी इज वन ऑफ द टॉप स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज इन लखनऊ. एंड सर वहाँ पे मेरे कई दोस्त थे. आई थिंक श्याम जी था, निकिता थी, आकाश था. these three were very good friends of mine. And उसके बाद सर हम लोग साथ में प्रिपरेशन भी करते थे एंड ऑल. एंड सर आई थिंक वो डोमेन बड़ा वो रहता है, मतलब इट्स लाइक सर मेरे लिए, मेरे ख्याल से आपका ग्रुप जो होता है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है. सर एक बात है सर, इफ यू आर इज लाइक कि अगर आप इफ यू आर स्मार्टेस्ट इन द ग्रुप देन यू आर इन द रॉन्ग ग्रुप. ओके. तो आपका आप अगर एक दूसरे से वैसा ग्रुप रहे ना जो एक दूसरे से आप सीखो, तो ज्यादा बेटर रहता है. एंड फिर उसके बाद सर मैं बात करता हूँ सर आईआईटी दिल्ली में. जब मैं आईआईटी दिल्ली में आया तो मेरे वही 3 दोस्त बहुत अच्छे बने, चंदन, सुधांशु एंड निशांत. एंड आई बहुत अच्छा रहा उनका सर जब मैं वहां रहा, बिकॉज हम लोग साथ में पढ़ते थे सर. सुबह हॉस्टल से की तैयारी करनी है तो आईआईटी दिल्ली सर लाइब्रेरी, आई थिंक आई वुड say that it is one of the best place to study. 24 hours open रहता है, कभी भी आप अपना टाइम चुन लो कि आपको इस शेड्यूल में जाना है, आप उसके हिसाब से जाओ सर, और अपने अच्छे से अपना पढ़ाई करो. तो अब उसमें ये रहता है कि आईआईटी दिल्ली में भी जो लोग निकल जाते थे और वहां पे क्लास करनी होती थी, क्लास करते थे, फिर आकर के अपना लाइब्रेरी में पढ़ाई करते थे. तो उससे साथ में 4-5 लोग एक ही दिमाग में था कि तैयारी करनी है वो, तो वो एक सर साथ में वो प्रेशर भी कम रहता है. यू हैव अ गुड बैकअप लाइक आईआईटी दिल्ली, और वो इन्वायरमेंट भी रहता है सर आसपास. बिकॉज ये नहीं कि हम ही लोग तैयारी करें, बहुत लोग उसमें हैं जो अलग अलग एग्जाम से, कई आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, हो सकता है बीटेक के फाइनल ईयर में वो आईएएस की तैयारी कर रहे हैं. तो कई तो वो सर एक जो इन्वायरमेंट था ना सर आईआईटी दिल्ली का, आई वुड गिव द क्रेडिट कि उसमें प्रिपरेशन करना वो बहुत ही हेल्प किया सर. So you made friends in IIT and now IIT Delhi, and I'm sure in NITI also you must have made quite good friends over there. Yes sir, in NITI I have a very good friends. I have one of my friend Ayush, Shubham, Anurag. I think I have made a very good friends in NITI. एंड सर उसका भी सपोर्ट रहता है ना सर. आपका जब नीटी में भी जाते हो तो आप प्रिपरेशन करते हो तो ये जो फ्रेंड्स रहते हैं सर, फ्रेंड सर्कल रहता है सर, साथ में हम लोग प्रिपरेशन करते हैं एंड ऑल. एंड फिर जब कुछ भी होता है डिस्कस करते हैं. सर यहाँ पे टीम वर्क जो है सर वो बहुत इंपॉर्टेंट है. जब आप नीटी में आप केस स्टडी कॉम्पिटिशन करते हो, ये सब जब आप करते हो तो जो टीम वर्क रहता है, जब आप टीम वर्क की बात करते हो, जब आप साथ में बैठ के काम कर रहे हो ना एक दूसरे के साथ, तो टीम भी बहुत इंपॉर्टेंट है. आप एक दूसरे से सीखते रहते हो. बिकॉज जितने भी लोग निटी में आए हैं सर, आई वुड गिव कि भले कुछ भी लगाओ, बट निटी में जितने भी लोग आए हैं दे आर एट द टॉप क्रीमी लेयर ऑफ आवर कंट्री, राइट. तो उन सब से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है सर. दैट्स ट्रू. अच्छा अंशुल, अब जैसे आपको जॉब लग गया एंड एवरीथिंग इज डन नाउ एंड वेरी गुड स्टार्टिंग यू आर गेटिंग, so what are the targets and objectives you have kept for you in future years, coming years? सर ऑब्वियसली जो पहली बार जो थियोरेटिकल चीजें if I have learned in the NITI, I have also seen practicals when I have done the internships, but obviously I want to implement it at the starting, and I want to in the learning phase. First 2 years I think the learning phase is very important sir, because this is the base in which you can build your building, right. The first 2 years I want to be in that learning phase, learning from the different kind of people, learning from my seniors at that particular company. And after that sir, I think I want to see the growth. I want to be the part of a team as a leader and lead them, and share with them the things that I have learned, and make the work done. And I think at future my goal is to get in the top positions of the company, so that I can whatever things I've learned in the learning phase, I can also cherish with that and share with our juniors or the people whom I lead. Great. Anshul, now we have come to almost an end of our this wonderful session, but I will ask you last thing, and that will be a message for prospective students of NITI. So you know your video will be watched by thousands of students, especially those who want to join NITI, who want to join these institutes. So what is your message to them? Sir, my message is that you must have your goal clear, right? It is not that I have tried once and I got clicked and I got in NITI Mumbai. I passed in 2018 and got in NITI in 2020. So they were the 2 years that I was struggling. So I think sir, the things that you will learn in that struggling phase are the most important lessons of your life. And when you would grow and the growing phase, and you will get to the NITI and you get at a high package, or when you will see the thing, the success, then you would always give credit to the 2 years that have you spent in the struggling phase.
So always live that moment. People get in the pressure that why it is not happening, but it may be happening, sir, and it has happened with me. So I can say that at the particular time, the particular exam may not have clicked, or you have failed in that particular exam, because in future there is a thing that is going to happen that is going to be more bigger than the present exam you are getting failed. Great. So Anshul, let me thank you once again. You spared your time for me and for this interaction, and I'm very sure ये जो आपने बातें बताई, they'll be very very helpful to the students. Thank you, and all the very best. Thank you, sir, and thanks a lot for giving me that opportunity.